Let's do Omkaram thrice. Sai Ram. Ram, ma'am. Okay. Have you read the chapter? All of you? Yes, ma'am. Am I audible? Saira ma'am. Yes, Sai Ram. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am, you tell are me. audible. Okay. Have you understood the Yes, terms? Rotation we have completed. That you understood? Yes, ma'am. Okay. Fine. Good. Let us continue with that. Okay. What is rotation? Anybody? Vedansh? मैम मैं बताऊँ अपने वर्ड्स में ma'am, can I tell? मैम कैन आई टेल Okay, Janvi. Movement of the earth on its axis is called rotation. Rotation. Okay. What are the two movements of the earth? मैम आपकी आवाज बीच बीच में स्लो हो रही है Yeah, was slow here. Okay, Ma'am, fine. rotation and revolution. Okay. Rotation and revolution. Very good. So these are two motions of the earth. Now I am presenting my screen. Okay. Is it visible better? My screen is Yes, visible. ma'am. यस Yes, मैम ma'am. Thank you. My humble salutations at the lotus feet of Swami. Let us begin our class. Third chapter of geography. This is motions of the earth. Now we have discussed about the two motions, types of motions, that are rotation and revolution. Okay. Now rotation, because of rotation we experience day and night. That we have done, and this is the movement of the earth on its own axis. Second one is revolution, movement of the earth around the sun in an orbit. And because of this revolution, what we experience? We experience seasons, different seasons. Now this also we have done, that rotation causes day and night on earth. This we were doing, we have done this also. Okay, what is rotational axis? What is orbital plane? These two things we have discussed. Now coming to the revolution. Now just now you said that revolution is the revolution when earth rotate, or when earth revolve around the sun in its own orbit, that is called revolution. Now you can see in this picture that there is this revolution, and during this revolution process what we can see, that various seasons, winter, spring, summer and autumn. Okay, on a particular position we experience all these seasons. Now coming to this, see, the movement of the earth around the sun in a fixed path मैम called मैम वी हैव टू revolution. राइट दिस Later on you can write it down, okay? Later on you can write it down, not now. Got it? Okay. Now
Rotation is completed by Earth in how many hours? Ma'am, Our 24. Earth, yes, 4 very hours. good. 24 hours. Okay. And revolution, Earth takes 365 days plus 1 by 4 day. 1 by 4 day, that means 6 hours. 24 hours is divided by 4, that is 6 hours. So, one revolution is completed by Earth in 365 1 by 4 days. Okay. बट हम क्या करते हैं कि हम 365 को ही लेते हैं. हम 365 के बाद वाले वो 6 घंटे काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हमको इजी नहीं होगा, हमको डिफिकल्टी होगी डेज को काउंट करने में. सो व्हाट वी यूजुअली डू, वी टेक ओनली 365 डेज of a year. ma'am. So, okay, in a year, there are 365 days. Okay, so 365 days is easy for us to calculate. Then what we do with 6 hours? The remaining 6 hours saved every year. कितनी बार सेव किए जाएंगे कि वो 24 आवर्स बन जाए? 3 साल तक. ठीक है. These 6 hours added to make 1 day. 3 साल जब करेंगे 6 3 18, तो 4th ईयर में वो 1 डे कंप्लीट हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट वी हैव लीप ईयर. ओके. आफ्टर एवरी मैम जो अभी जो ईयर चल रहा है मैम वो लीप ईयर है. देखो, कैलकुलेट करो कब लीप ईयर आया था. कब लीप ईयर आया था? मैम 2019. क्या? नो मैम दिस ईयर. मैम ये ईयर था. यही ईयर था. मैम फरवरी में 29 डेज थे. हाँ, तो 29 डेज कब होते हैं? जब हम 6 घंटे जोड़ते जाते हैं, तो हर चौथे साल में क्या होता है? लीप ईयर आ जाता है, और फरवरी हमारी 29 डेज की हो जाती है. सो दिस 1 डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, मेकिंग इट ऑफ 29 डेज. और ये 29 डेज होने का क्या कारण है? बिकॉज वी डोंट टेक और डोंट काउंट, डोंट ऐड दिस 1 by 4 day, okay, of every year. So after 3rd year, in the 4th year, we add these 1 by 4 day, and which is equal to 1 hour, 1 day, sorry, 24 hours. So that makes a day, which is added to the February month and मैम making it. फरवरी मंथ में क्यों होता हाँ, है ये? बाकी सारे में तो ऑलरेडी 30-31 है, फरवरी में ही कम है. ठीक है, वो कैलकुलेशन किया गया, उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया गया बेटा. ठीक है. नाउ दिस ईयर विद 366 डेज कॉल्ड अ लीप ईयर, है ना. सभी को पता है कि लीप ईयर में 29 डेज फरवरी में होते हैं, और वो लीप ईयर हमारा क्या हो जाता है? 366 डेज का बन जाता है. ओके. नाउ अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? किसी को भी पता है? एनीबॉडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट? किसी ने सुना हो, कभी पढ़ा हो? नो मैम. नो. एलिप्टिकल, हमने ऑर्बिट, आपको पता है ना, ऑर्बिट पर्टिकुलर पाथ इन विच ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, सभी का अलग अलग रास्ता बना हुआ है, पाथ बना हुआ है. एलिप्टिकल मतलब अंडाकार है, वो गोल नहीं है, सर्कल नहीं है, बल्कि ओवल शेप जैसा है. तो एलिप्टिकल पाथ जो है इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो गोल नहीं है, सर्कुलर पाथ नहीं है, थोड़ा सा लंबा है. ठीक है, अंडाकार है, ओवल शेप है. Now seasons change due to change in the position of the earth around the sun. Now just now we have seen, और उस दिन भी डिस्कस किया था कि अर्थ की पोजीशन एक ही रहती है अपने एक्सिस पे. ठीक है, वो अपने पोजीशन पे रोटेट भी करती है, एंड विद दैट इट रिवॉल्व अराउंड द सन ऑल्सो. आप देखो एक ही पोजीशन है, दिख रही है क्या पोजीशन सभी को?
Can you see the position of the earth? It remains same. Yes, ma'am. है ना, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा सा एक्सिस पे है ना, देख लो आप 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, Yes, ma'am. Yes, है ना. ma'am. तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी एक्सपीरियंस ऑल द सीजन्स, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है. ये रिवॉल्व तो कर रही है, रोटेट भी कर रही है, बट इसकी जो ये एक्सिस पे पोजीशन है ये कभी भी चेंज नहीं होती है. इट रिमेन कांस्टेंट. वो जैसी है वैसी ही बनी रहती है. आगे बढ़ने से पहले जरा एक YouTube का हम ये देख लेते हैं वीडियो. मैम ये क्लास के बाद भी देख सकते हैं ना मैम, अगर समझ नहीं आया हो तो. आपको मिल भी जाएगा, ये YouTube का ही है, ठीक है. Ma'am, voice is not मैम coming. वीडियो की वॉइस नहीं आ रही है. अच्छा, वॉइस आप बिल्कुल भी नहीं आ रही. यस मैम, बिल्कुल भी नहीं आ रही है. ओके, जस्ट वेट बेटा. मैम वॉइस नहीं आ रही. Ma'am, the voice is not coming of video. बेटा लेट मी सी. नाउ इज इट कमिंग? No, ma'am. आ रही. No, ma'am. मैम आप अपने पीसी की वॉल्यूम तेज कर लीजिए. मैम आपने परमिशन ऑन नहीं की. यस मैम, वो एक पर- वीडियो में मैम परमिशन परमिशन होती है. ओके, जस्ट वेट बेटा, देन वी विल सी लेटर ऑन. ओके. Coming back again. मैम वीडियो बंद है. ऑन ही है. कॉल है. मैम वॉइस आ रही थी वैसे. वॉइस आ रही थी. नो प्रॉब्लम बेटा, लेट मी सी व्हाट इज इट. ओके. Now is it coming? Is it audible? मैम स्क्रीन शेयर बंद हो गई. मैम प्रेजेंटेशन. यस मैम, स्क्रीन शेयर बंद हो गई आपकी. Okay. No problem. Just coming back. Okay. मैम स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा. Now just wait बेटा.
Beta, is my screen visible? No, ma'am. Ma'am, उसमें yes, ma'am. मैम अब आ रही है। Yes, ma'am. Is it visible now? Yes, ma'am. Ma'am, your voice is breaking. Beta, I'm leaving the meeting and I'll join. Okay. मैम आपके दोनों साइड आवाज आ रही है। Just wait, beta. Let me leave the meeting first. मैम अपने मोबाइल का वो ऑफ मैम आपकी वॉइस बहुत एको आ रही है। आपके दोनों माइक ऑन है। मैम आपके एक दोनों आपका माइक ऑन लैपटॉप है और मैम एक दो आपके मोबाइल है। मोबाइल तो नहीं है। मैम आप एक बार वो मैम आपका मोबाइल का माइक शायद ओपन है। मैम मैम अब आपका लीव हो गया। अब लीव हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम लीव हो गया। हम्म। चलो इसको नहीं देखते बेटा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब मेरी आवाज क्लियर है? Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. रिकॉर्डिंग Yes, ma'am. रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग मोड पे है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम रिकॉर्डिंग। Yes, ma'am. Okay, fine. Now this side, is this clear to all? What is revolution and why there is 366 Yes, ma'am. days in a year? यस मैम। Okay, fine. We are moving further. Now see, this is called revolution orbit, the path of the earth. Okay, ये orbit है, देखो, ठीक है, और ये spin कर रही है अपने एक्सिस पे in 24 hours. Got it? In 24 hours, rotation is complete, and in 365 1/4 days, the revolution is completed by the earth around the sun. Okay. These are all seasons. We experience these seasons in a year. Why we experience seasons? Because What is of the reason? revolution of the Because of revolution. Yes, very good. And why do we experience day and night? because of मैम rotation. बिकॉज ऑफ रोटेशन। Yes, because of rotation. Now these two things are very clear to all, no? रोटेशन से दिन और रात बनते हैं। रोटेशन का मतलब क्या है? अपने पॉइंट पर घूमना। ओके, अर्थ अपने एक्सिस पे, अपने पॉइंट पे अगर रोटेट करती है तो वो उसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। एंड डे एंड नाइट बनने का रीजन भी बताया था, क्योंकि ये स्फीयर है, स्फेरिकल है, गोल है, तो एक साथ सूर्य की किरणें इसके पूरे अर्थ पे हमारे नहीं पड़ पाती, तो जितना हिस्सा पीछे रह जाता है वो डार्क हो जाता है और जो फ्रंट साइड होता है वो डे में आ जाता है। तो धीरे धीरे इस तरीके से डे एंड नाइट बनते हैं, एंड बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन वी एक्सपीरियंस सीजन्स ऑन अर्थ। नाउ सोल्स्टाइस, अब इसको जरा देखते हैं सोल्स्टाइस को, ठीक है। either of the two times of the year at which the sun reaches its highest or lowest point in the sky at midday are marked by the longest and shortest days. Okay, because we know that the earth is revolving around the sun. अर्थ क्या है? घूम रही है सूर्य के चारों ओर, ठीक है।
तो कोई ऐसी पोजीशंस आती हैं जब सन क्या होता है, या तो वो लोएस्ट पॉइंट पे होता है अर्थ के, या हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, ठीक है। और कौन सा टाइम होता है, मिड डे। तो इससे क्या होता है, या तो लॉन्गेस्ट डे होगा हमारे यहाँ पृथ्वी पे, या शॉर्टेस्ट डे होगा, ठीक। तो दो टाइम ऐसा होता है कि अर्थ के ऊपर मिड डे में या तो सन बहुत दूर होता है या बहुत पास होता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, एक मिनट वापस आते हैं, ठीक है। ये देखो, मैंने आपको ये बताया था रोटेशन जब होता है रिवॉल्व, तो ये ऐसा। हाँ, हेलो दिव्य, दिव्य। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. युवराज। हाँ, what do you say? Ma'am, ma'am present. Ma'am present. प्रेजेंट बेटा, आपकी प्रेजेंट लग जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना, उसमें आ जाता है, आप जब भी ज्वाइन करोगे उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये जो हमारी एक्सिस है, अब ये रोटेशन का जो मूवमेंट हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है, हमने उस दिन देखा भी था, आप देखोगे तो ये देखो, ये तो इसका सीधा पॉइंट है, Yes, ma'am. लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है, ऐसी झुकी हुई है, दिस यू नो, ठीक है। ऐसा 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। और ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये ऑर्बिटल प्लेन है, यहाँ ऑर्बिटल प्लेन है आपका, ये जो बन रहा है ये सीधा, तो ये कौन सी डिग्री बनती है, 66.5 डिग्री, ये मैंने आपको उस दिन बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है, ये देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल पूरा का पूरा सन के सामने है, ठीक है। और साउथ पोल बिल्कुल डार्क में है, यहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, सनरेज नहीं पहुंच रही। वाई? बिकॉज ऑफ द टिल्टेडनेस ऑफ द अर्थ, ओके। अब ये टिल्टेडनेस की वजह से क्या होता है कि जब ये घूमते घूमते किसी और पोजीशन में आता है, तो ये पूरा एरिया यहाँ आ जाएगा और ये पूरा एरिया यहाँ चला जाएगा। नाउ लेट अस सी अगेन, यहाँ आ जाओ, ये देखो अब, ठीक है। अब ये जब यहाँ सूर्य के सामने है तो ये पोजीशन पीछे चली गई। जो साउथ पोल है, ध्यान से देखना, ये मेरे कर्सर को देखते रहना, ठीक है। ये साउथ पोल आप देखो पूरा डे में है, दिख रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल रात में है, साउथ पोल दिन में है। अगेन यहाँ पहुंचो, देखो नॉर्थ पोल जो है पूरा दिन में है, बट साउथ पोल जो है डार्क में आ रहा है। यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल पर देखो दिन दिखाई दे रहा है, पर साउथ पोल में कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा। तो जब ऐसी पोजीशंस में आता है किसी ना किसी पोजीशन पे, तो कभी सूर्य की रोशनी यहाँ पे ज्यादा पड़ती है और कभी यहाँ पे ज्यादा पड़ती है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, कभी साउथ पोल पे ज्यादा पड़ती है, कभी नॉर्थ पोल पे ज्यादा पड़ती है। और जो हमने इसकी पोजीशन को चेक किया था कि अर्थ तो अपने एक्सिस पे ही इसी पोजीशन में रहती है, तो अर्थ के ये जो सामने पड़ रही है रोशनी सूर्य की, या वार्मथ या जो हीट और लाइट पड़ रही है, ये क्या सारी जगह इक्वल रहेगी? सारी जगह इक्वल रहेगी क्या? नो नो मैम। इट वो ये एक जैसी कैसे रह सकती है, आप बताओ। ठीक है, आज क्या करना है, एक बॉल ले लेना और एक बीच में टॉर्च रख लेना, और उसके बाद उसके चारों तरफ आप बॉल लेके जरा घूमना और बॉल को भी हाथ में घुमाते हुए देखना। अगर आपके पास ग्लोब है तो यू कैन डू दैट एक्टिविटी ऑल्सो, अगर नहीं है तो अपनी बॉल को किसी पिन में अटकाकर आप रोटेट करना एंड फिर वो लाइट के साइड। हाँ, तो आप देखना कि किसी किसी पॉइंट पे जो सूर्य की रोशनी है सीधी पड़ रही है और किसी जगह पे नहीं भी पड़ रही है, ठीक है। और इसी की वजह से जो है ये सॉल्स्टाइस बनते हैं, मतलब आइदर वहां डे सबसे लॉन्गेस्ट होगा या फिर सबसे शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। हमें पता है कि गर्मियों में दिन बड़े, हाँ गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, ठीक है।
ठीक है, इतना क्लियर है ना? गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। हाँ, और ये ये तो समझ आ गया कि एक तरफ कम पड़ती है, कभी ज्यादा पड़ती है रोशनी से मन। और इसका लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे से क्या कनेक्शन है? हाँ, ये देखो, अब यहाँ पोजीशन देख लो आप। ये पोजीशन देख रहे हो तो यहाँ लग रहा है ना बराबर सी पड़ रही होगी, क्योंकि ये इसके यहाँ लंबाई ज्यादा है। अभी हमने पढ़ा कि अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है, ये जो है ऑर्बिट एक ऐसा एलिप्टिकल पाथ है, अंडाकार है, दिख रहा है? ये सर्कल नहीं है, ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे छोटी वाली जगह पे जहाँ पे थोड़ा दबा, ओवल शेप है। हाँ, यस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एलिप्टिकल पाथ, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, तो यहाँ पे जब डिस्टेंस कम होगा तो सन की रेस कैसी पड़ेंगी? तेज, ज्यादा, है ना? और जहां दूर होगा तो सन की रेस कैसी होंगी? कम पड़ेंगी। ठीक है, कम गर्मी सी होगी। अब ये देखो, ये पोजीशन में जब आता है सन तो यहाँ समर हो गया, पर ये नॉर्थ पोल में समर है तो साउथ पोल में क्या आएगा? विंटर। ठीक है, सेम अगर साउथ, अब यहाँ पे देखो, जिस जगह पे ये सूर्य की पोजीशन है, अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ की पोजीशन सूर्य के सामने जिस जगह पे आई है यहाँ पे, तो अब यहाँ देखो कि अगर नॉर्थ पोल में ऑटम है तो साउथ पोल में स्प्रिंग होगा, ऑपोजिट होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ अगेन आप देखोगे कि यहाँ पे हम ऊपर की पोजीशन में क्या देख रहे हैं? विंटर, क्योंकि ये पूरा डार्क हो गया है। समझ में आ रहा है? ये टिल्टेडनेस की वजह से आप देखो, ये नॉर्थ पोल की तरफ पूरा ज्यादा डार्कनेस है, सन की रेस कम पड़ेंगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये ऐसे टिल्टेड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये टिल्टेडनेस जब ज्यादा होगी तो अभी इस तरफ धूप कम जाएगी। ठीक है, अभी धूप कहाँ पड़ रही है? इस जगह पे ज्यादा है। वो कौन सा एरिया है? साउथ पोल का। मैम ये साउथ साउथ, पोल। ठीक है, साउथ पोल में समर होगा अभी। ठीक है, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर हमारा क्या है अभी? समर सीजन का। और हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर से ऊपर का पार्ट जो है, दैट इज कॉल्ड नदर्न हेमिस्फीयर, एंड इक्वेटर के नीचे का बिलो जो लोअर पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। तो अभी अगर आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो, ये इक्वेटर बना दो, तो यू विल फाइंड दैट दिस पोर्शन इज अवे फ्रॉम द लाइट एंड हीट ऑफ द सन। ठीक है, ये आपको दिख रहा है डार्क, ये पीछे की तरफ है। तो अभी नॉर्थ पोल में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा क्या हमारा विंटर एक्सपीरियंस कर रहा होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर जो है वहां पे अभी समर होगा। कब होगा? ये देखो, दिसंबर मंथ में। ठीक है, आपने इंडिया में अगर देखा होगा तो हम विंटर एक्सपीरियंस करते हैं दिसंबर मंथ में। ठीक है, इसका उलट क्या होता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, सदर्न जो हेमिस्फीयर में जितने भी कंट्रीज आते हैं। मैम इसलिए क्या कि ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो समर सीजन में उनके यहाँ क्रिसमस होता है। Yes, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ that is why they celebrate Christmas in summer season. हमें मैम वो लगता है लोग कि समर बड़ी के कपड़े विंटर है। हाँ, टाइम में हमें ऑस्ट्रेलिया में। लगता है कि विंटर है, लेकिन उनके यहाँ पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर एक्सपीरियंस जब हम करते हैं, दे यूज टू एक्सपीरियंस समर सीजन। तो क्रिसमस उनके यहाँ समर में आता है। जितने भी नदर्न हेमिस्फीयर में हैं कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, they will experience winter season, whereas the countries or the continent which are lying in the northern hemisphere, they will experience summer season there. Okay, क्यों है? सिर्फ इस वजह से है, ये जो ऐसे इसका झुकना है ना पृथ्वी का, इसकी वजह से है कि कुछ भी इक्वल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ आप देखो, ये पूरा इस तरीके से झुका है। हमारे नॉर्थ पोल पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर ज्यादातर सन के कांटेक्ट में है। सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखो, ये इतना सा ही पोर्शन है। ठीक है, तो अब क्या है, ज्यादा पोर्शन हमारा सूर्य के सामने है, और हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन है, whereas in the southern hemisphere we experience autumn season. ठीक है,
जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर हम देखते हैं कि नॉर्थ में हमारा इंडिया कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। बट अगर हम ईस्ट और वेस्ट के अकॉर्डिंग मानेंगे तो ईस्ट वेस्ट को सोच के अगर हम देखते हैं तो इंडिया इज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके। लेकिन सिर्फ दो ही पार्ट किए जाएंगे कि इक्वेटर से ऊपर वाला पोर्शन क्योंकि नॉर्थ में आता है, सो दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है, इन विच हेमिस्फीयर इंडिया इज लोकेटेड, सो यू कैन से इट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बट अगर ईस्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है देन यू कैन से इट इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। हम दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन दिए हैं तो ईस्ट हेमिस्फीयर ही करेक्ट होगा। अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है देन यू कैन से इट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके। ये ध्यान रखना हमें, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंडिया, अब जैसे ये इसको पार्ट कर दो, चार ब्रेकिंग अगेन बेटा, माय दिस कनेक्शन इज, आप पोजीशन जरा चेंज योर पोजीशन, जस्ट चेंज योर, नहीं कोई बात नहीं, कहीं नेटवर्क इश्यू हो सकता है बेटा, थोड़ा सा चेरी पोजीशन चेंज कर लो अपने, जस्ट चेंज योर पोजीशन, ओके, ठीक है। इज दिस क्लियर नाउ? तो अब ये सन है और ये पृथ्वी घूम रही है, अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है सन के चारों ओर। तो अगर हम यहाँ पे पहुंचते हैं, हाँ आगे बेटा, आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही, मुझे लग रहा है मेरी क्लियर है, मेरी पोजीशन भी है ना। कोई बात देख लो बेटा, इस साइड उधर सही आ रही है। थोड़ा सा अपना डिवाइस को मूव करो, सिस्टम को मूव कर लो हल्का सा, है ना। तो कहीं पे नेटवर्क का प्रॉब्लम कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, अपने घर में भी किसी किसी कोने में ज्यादा आता है नेटवर्क, कहीं कम आता है, तो फाइंड आउट दैट। नाउ अब समझो सोल्स्टिस क्या है, आइदर ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ द ईयर, साल में 2 बार, ठीक है, क्या होता है, at which the sun is reaches its highest। कभी सन एकदम ऊंचाई पर होता है और कभी सन सबसे नीचे होता है, कब, इन द स्काई एट मिड डे टाइम, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मिड डे में, दोपहर के समय, या तो सन बहुत ऊपर होता है या बहुत नीचे होता है, यानी बहुत पास होता है या बहुत दूर होता है, समझ में आ रहा है। अभी हमने जो सीजन्स का वो देखा, रिवॉल्यूशन का आपने देखा कि कैसे सीजन्स बनते हैं, इसमें हमने पोजीशन को देखा है कि उसका ऑर्बिट कैसा है, एलिप्टिकल है ना। अब किसी जगह पे सन के पास आ जाएगी पृथ्वी और किसी जगह पे सन से दूर हो जाएगी। दिस इज क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? मैम 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 क्या ये सच है कि सन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और किसी दिन अर्थ को भी अपने अंदर ले लेगा? सन है क्या, सन है क्या, हम ऐसा गैस, गैस का है ना, गैस का। हाँ, बॉल ऑफ फायर, तो फायर क्या है, गैस है, ठीक है, गैस है। चलिए दिस, मैम हाँ यस बेटा, मैम ईथर मतलब क्या होता है? इधर या तो वो लोवेस्ट पे होगा या आइदर दिस और दैट, ठीक है, या तो या वो सबसे ऊपर होगा या सबसे नीचे होगा, हाईएस्ट मोड पे होगा या लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट हो सकता है या लोवेस्ट पॉइंट, दोनों में से कोई, अंडरस्टूड, ठीक है। मिड डे में अभी पोजीशन से हमें पता चल गया था, तो जब मिड डे में सन का ये पॉइंट होगा हाईएस्ट या लोवेस्ट, तो इससे क्या बनेगा, या तो लॉन्गेस्ट डे होगा या शॉर्टेस्ट डे होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, जब पृथ्वी सन के पास होगी, हाँ ठीक है। 2 solstices occur annually, और ये जो टाइम है कि कभी दिन लंबा होता है या दिन छोटा होता है, ये एनुअली होता है, साल में 2 बार होता है, कब, अराउंड जून 21 एंड दिसंबर 21,
जून 21 को लॉन्गेस्ट डे होगा और दिसंबर में हम शॉर्टेस्ट डे एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जून गर्मियों का समय है तो हमको लॉन्गेस्ट डे दिखता है, सबसे ज्यादा गर्म दिन, सबसे बड़ा दिन, और दिसंबर का 21 सबसे छोटा दिन। फिर धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द अर्थ। क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे। इज दिस क्लियर? यस मैम। आप इसको ना आराम से, इस वर्ड्स को नहीं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है देन ओनली वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, दो टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कि सन के वो बहुत करीब होती है, पास में होती है, या फिर सन से बहुत दूर होती है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? उसके एलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से। तो क्या बनता है इससे? या तो लॉन्गेस्ट डे होगा या हम शॉर्टेस्ट डे एक्सपीरियंस करते हैं। ये एनुअली होता है, एनुअली मतलब साल में। टू सॉल्स्टिसेस अकर एनुअली, एनुअली मतलब एक साल में। कब होता है? या तो जून में या दिसंबर मंथ में। डेट भी देखो, 21 जून एंड दिसंबर 21। जून 21 द लॉन्गेस्ट डे, दिसंबर 21 द शॉर्टेस्ट डे। समझ में आया क्यों है ये सॉल्स्टिस, क्या है? ठीक है, छोटा और बड़ा दिन का होना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कोई क्वेश्चन नहीं आया इसलिए। नाउ व्हाट इज समर सॉल्स्टिस? अगेन, summer solstice which happens on June 21 और 22 each year, वो डेज इधर उधर थोड़े से हो जाते हैं, has the longest day light time। इस दिन सूर्य की सबसे तेज और ज्यादा देर तक हमें लाइट मिलती है। दैट इज व्हाई दिस और दिस, either this June or it may be June 22, the longest day। मैम क्या वो सबसे हॉटेस्ट डे भी होता है? Yes. It is also the first day of summer। ठीक है, on June 21 the northern hemisphere is tilted towards the sun। Now again try to understand, 21 जून को क्या होगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, वो वाला जो पार्ट है वो सन के पास होता है, सन की तरफ झुका हुआ होता है, फिर जाते हैं वापस। ठीक है, ये देखो दिख रहा है, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये ऊपर वाला पार्ट। लुक इट वेरी केयरफुली, ऑब्जर्व द पिक्चर। ओके, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है पूरा ऊपर से। आप देखोगे कि ज्यादा नॉर्थ का जो पार्ट है वो पृथ्वी जो है इस तरफ को झुकी हुई है, सन के सामने है उसका झुकाव। हाँ, मैम इस टाइम सबसे ज्यादा रशिया और चाइना पे रोशनी हो रही होगी ना? भी कॉन्टिनेंट्स है ना यहाँ पे, वो ज्यादातर जितने भी नदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, दे विल एक्सपीरियंस द समर सीजन एंड दिस। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पोर्शन जो है वो नॉर्थ का सन की तरफ है। समझ में आ रहा है? पिक्चर से देखो, नॉर्थ हेमिस्फीयर है ये पूरा इतना, अगर हम इसको हाफ कर दें तो ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। सदर्न हेमिस्फीयर का कम पार्ट हमारे सूर्य के सामने है, जबकि नदर्न हेमिस्फीयर का मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एक्सपोज टू सन। ओके, इसके ऑपोजिट में यहाँ पहुंचो तो यहाँ आप देखोगे कि जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। यहाँ समर हमारे नॉर्थ पोल पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो साउथ पोल हमारे सन के सामने है, हमारा नॉर्थ पोल सन से दूर हो गया। तो ये पोजीशन में यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? यहाँ समर है, यहाँ विंटर है, तो हमारे यहाँ ये जो है दिसंबर 21 और 22 इज द लॉन्गेस्ट नाइट होगी। समर इज द लॉन्गेस्ट डे नहीं होगा बल्कि लॉन्गेस्ट नाइट होगी, जस्ट ऑपोजिट होगा।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डे है, इसका मतलब है शॉर्टेस्ट डे, इसका मतलब है लॉन्गेस्ट डे। यू कैन सी, हम केवल ऊपर के पोर्शन को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसका जस्ट ऑपोजिट होगा नीचे। ठीक है, जो भी आपकी पोजीशन नदर्न हेमिस्फीयर में है, ऑपोजिट इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट। मैम यस मैम दिसंबर 21 को भी सबसे बड़ा दिन होता है। छोटा दिन। नो मैम, रात को मैम रात छोटी होती है। हाँ, यानी रात लंबी होती है ना सर्दियों में बेटा, हमेशा हमारी सर्दियों में रात, गर्मियों में छोटी सी रहती है। हाँ ठीक है, दिन जल्दी उग जाता है। ठीक मैम ठंडी ठंडी हवा रहती है रात में, इसलिए मैम रात ज्यादा होती है। हाँ यहाँ थे। ठीक है, अभी क्लियर है, इस चीज को देखा आपने, ध्यान दिया। नाउ द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, so the areas receive more amount of heat. Now you know what is tropic of cancer and what is tropic of capricorn, याद है ना? हम सेकंड चैप्टर में थे। हाँ, हमने टॉरिड जोन वगैरह पढ़ा था, जिसमें हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। So there we Yes, have ma'am. read about the tropic of cancer and tropic of capricorn, equator, frigid zone, arctic circle, antarctic circle. Okay, all these latitudes we have read in the second chapter. So tropic of cancer पे सन की रेज डायरेक्ट रहती हैं, इसलिए समर सॉल्स्टिस रहता है। और सेम इसका ऑपोजिट जो होगा वो कब होगा, जब विंटर सॉल्स्टिस आएगा। ठीक है, तब कहाँ पे डायरेक्ट होंगी सनरेज, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर समर एक्सपीरियंस करता है, दैट टाइम वी पीपल एक्सपीरियंस विंटर। एक किसी को भी एक को आप अच्छे से ध्यान रखोगे ना, तो यू विल एबल टू रिकॉल दिस नेक्स्ट वन। The sun rays fall directly on the Tropic of Cancer, so the areas receive more amount of heat. And this time in the southern hemisphere it is winter season there, just opposite southern hemisphere में। अब winter solstice क्या है? On 22nd December or 21 December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun, just opposite of that. ठीक है, हमको बस क्या याद रखना है, 21-22 जून, 21-22 दिसंबर। ओके, तो दिसंबर मंथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेज होती हैं सन की, बिकॉज दैट एरिया इज क्लोजर टू द सन। द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, अगेन कमिंग बैक टू इट, सी साउथ पोल इसके पास में सन के सामने है। ठीक है, और ये नॉर्थ जो है ये दूर हो गया, दिखाई दे रहा आपको, ये नॉर्थ जो है वो साउथ से दूर हो गया, साउथ हमारा पास है और नॉर्थ हमारा दूर हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारी जो ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है, दैट विल रिसीव मोर हीट एंड लाइट, और वो भी डायरेक्ट, जबकि ये पोर्शन में कम होगा बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द सन। This portion is away from the sun. Northern hemisphere is receiving less of heat and light, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है आप देखो ये दूर हो गया। ठीक है, हमें ऐसे देखने में लग रहा है कितना बहुत कम डिस्टेंस है, बट इट इज नॉट, मीन्स इट इज नॉट लाइक दैट। ये हमको ऐसे पिक्चर में ऐसा दिख रहा है, पर एक्चुअली जब हम होंगे तो ये दूर हो जाता, बहुत दूर होगा, क्योंकि पृथ्वी इतनी छोटी नहीं है। ये तो पिक्चर आपको लग रहा है कि अरे कहाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट द डिफरेंस इज मच। ठीक है, देन द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। विंटर में सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी कंपैरेटिवली
कौन से? नदर्न हेमिस्फीयर के। इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। समर में, समर कहाँ पे होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में। और डेज कैसे हो जाएंगे वहां पे? लॉन्गेस्ट, लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। जबकि रिवर्स विल हैपन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में हमारे शॉर्टेस्ट डेज हो जाएंगे एंड लॉन्गर नाइट्स हो जाएंगी। देखो अब ये पोजीशन भी एक बार चेक कर लो वापस से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न की। सी, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। दिस इज नॉर्थ पोल and this is south pole. Now can you see the position in this picture? Just take a look. You will find that this is very clear to you, क्योंकि इसमें सिर्फ दो पोजीशन दिखाई गई हैं आपको कि कब जून सॉल्स्टाइस, ये जो समर सॉल्स्टाइस है, और ये कौन सा सॉल्स्टाइस है? विंटर सॉल्स्टाइस, नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और यहाँ पे जो नदर्न हेमिस्फीयर है ये समर नहीं विंटर एक्सपीरियंस कर रहा होगा, और यहाँ पे वो समर एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पे अगर हमारा नदर्न हेमिस्फीयर समर एक्सपीरियंस कर रहा है तो इस पोजीशन में आते ही वो विंटर एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो जून सॉल्स्टाइस जो यहाँ बताया, ये नदर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंसिंग समर, whereas in this position this southern hemisphere is experiencing summer. ध्यान से देख लो पिक्चर, है ना? ये देखो, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है जो कि सन के पास, मतलब सन की रोशनी उस पर सबसे ज्यादा पड़ रही है। विंटर वाले में जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, इसमें कम पोर्शन सन के सामने है। यहाँ पे साउथ पोल वाला पोर्शन, सदर्न हेमिस्फीयर वाला पोर्शन ज्यादा है। दिस इज इक्वेटर and this is Tropic of Capricorn, whereas you can see here that this is equator and this is Tropic of Cancer. अब Tropic of Cancer पे यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं, that is why we experience summer season during June month. Okay, और यहाँ पे हमारा ये पोर्शन पीछे चला गया, यही वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया। सी, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कम धूप पड़ रही है, कम लाइट है, कम हीट है, सो दैट टाइम वी एक्सपीरियंस विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड समर इन सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनरेज हैं, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनरेज हैं। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. चलो, ये नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को हम कंप्लीट करेंगे बेटा। ओके, आई एम कमिंग बैक। ट्राई टू गो थ्रू द चैप्टर बेटा, ठीक है? और जितने डाउट्स होंगे ना, नोट इट डाउन समवेयर सो वी कैन डिस्कस अबाउट दोज डाउट्स। क्लियर? चलिए, लेट अस कंक्लूड आवर क्लास। शांति शांति शांति। साईराम। साईराम मैम। साईराम बेटा, साईराम। Bye. साईराम।